Today we live in a world that can be described as post-truth. आज हम ऐसे समय में रहते हैं जिसको सच्चाई के पश्चात की बात माना जाता है, Or the world of alternative facts, that facts do not matter, you can create your own truth, you can create your own facts. और एक ऐसा समय माना जाता है कि आप अपने बातों को अपने आप मना सकते हैं, आपको किसी तथ्य पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है. And that's why this is the age of syncretism, meaning that you can pick up the best from wherever you find it and then create your own philosophy, your own religion. और ये एक ऐसा समय भी है कि आप अपना फिलॉसफी या अपना कोई धर्म भी बना सकते हैं, सब में से कुछ अच्छी चीज़ें बांट के अपना एक विशेष कुछ बना सकते हैं. And whatever people create, और जो कुछ भी लोग बनाते हैं, they claim it to be the best and superior. वो घोषणा करते हैं कि वही सबसे उत्तम है और सबसे सर्वोपरि है. And that's what is happening today even to the church and inside the church. और यही आज कलीसियाओं में हो रहा है और सब जगह हम देखते हैं. That people are claiming that you can add something good, something which is not harmful to the Lord Jesus Christ and His teachings. और लोग ऐसा मानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के सामने और उसकी शिक्षाओं के साथ कुछ और अच्छी चीज़ जो किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती, उसको भी आप जोड़ सकते हैं. So in doing that, और ऐसा करने के द्वारा we do not realize, or people who do such things do not realize, और हम ये जानते हैं कि लोग इस बात को नहीं समझते, that we are robbing Jesus of the glory and the position that God has placed him in. तो ऐसा करने के द्वारा लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन ऐसा करने के द्वारा हम मसीह यीशु की उस महिमा को जिसमें परमेश्वर ने उन्हें रखा है, हम उसको चुराते हैं. He alone, Jesus alone, is to be lifted up, and you and I do not need anything to add to him. और केवल प्रभु यीशु मसीह को ही उठाया जाना चाहिए और कोई भी दूसरी बात को उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है. So today we are beginning a new series of messages. और इसलिए आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं संदेशों की, rooted in the all sufficient Christ. और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में जो सब पर्याप्त है उसमें अपने आप को जड़ पकड़ाएं. We will be spending the next 7 weeks looking through the letter of Paul to the church in Colossae. और आने वाले 7 हफ्तों में ईश्वर ने चाहा तो हम देखेंगे इस यात्रा को जो कि पाई जाती है पौलुस प्रेरित के नाम कलीसियों के नाम जो उन्होंने खत लिखा. This is one of my favorite epistles in the New Testament. और नए नियम में ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट एक लेटर है. Also one of the shortest letters. एक सबसे छोटा खत है. Only 4 chapters. केवल 4 अध्याय हैं. And therefore I would request you throughout this week, read it at least once in a day. It will take you hardly 10 to 12 minutes to completely read the whole letter of 4 chapters. और मैं चाहूँगा कि इस पूरे हफ्ते में आप इस शायद 10 मिनट आपको लगेंगे, आप उस पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं. It contains one of the most breathtaking announcements and language about the lordship of Jesus Christ. और इसमें प्रभु यीशु मसीह की जो प्रभुता है उसके विषय में हमको बताया गया है, घोषणा की गई है. More than anywhere else in the scriptures, किसी भी दूसरे सुसमाचार से ज़्यादा Apostle Paul uses the most sublime language to describe who Jesus Christ is, what is his identity. और पौलुस प्रेरित बहुत ही सुंदर भाषा में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि वो कौन है और उनकी पहचान क्या है. So this series will follow through the natural divisions in the 4 chapters of the letter to the Colossians. और ये जो 4 अध्याय हैं हम इसी सूची में बढ़ेंगे.
Today we shall see how we are to be rooted so that we will be bearing fruit. और आज हम देखेंगे कलुसियों में कि हमको कैसे जड़ पकड़ना है उसमें और फल लाना है. And then in week 2, next week, God willing, we will see the fullness of God in Jesus Christ. और अगले हफ्ते प्रभु ने चाहा तो हम कुलुसियों 1 अध्याय की 15 से 23 में देखेंगे परमेश्वर की परिपूर्णता इस मानव जाति में. We'll continue in chapter 1 through the third week. और तीसरे हफ्ते में हम कुलुसियों में फिर से देखेंगे पहले अध्याय में. And week 4 will deal with chapter 2. और चौथे हफ्ते में हम कुलुसी का दूसरा अध्याय देखेंगे. And week 5 and 6 with chapter 3. और 5वें और 6वें हफ्ते में हम तीसरा अध्याय देखेंगे कुलुसियों का. And God willing, we will close in week 7, dwelling in chapter 4. और परमेश्वर ने चाहा तो 7वें हफ्ते में हम कुलुसियों का चौथा अध्याय के साथ इस श्रृंखला को खत्म करेंगे. And as you will be reading throughout these weeks, और जैसे आप इनको पढ़ेंगे इन पूरे हफ्तों में, you will notice that first of all, Paul is grounding us in our beliefs, in our doctrines. और हम देखेंगे सबसे पहले कि पौलुस प्रेरित जो है वो हमें हमारे जो सिद्धांत है उसमें हमको कैसे जड़ पकड़ने के लिए बोल रहे हैं. And after he is establishing us in the doctrine, और फिर बाद में जब वो हमें स्थापित कर देते हैं सिद्धांतों में, in the last few chapters he describes the practice. How then should we live? और फिर आने वाले हफ्तों में फिर बाकी के हिस्से के कुलुसी से वो बताएंगे कि हमें जीना कैसे है. Hallelujah. Hallelujah. So let's continue to pray that God will mold us in the image of his son Jesus Christ throughout these weeks. और आइए हम प्रार्थना करें कि आने वाले इन पूरे हफ्तों में प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी समानता में बढ़ाए और हमको अपने जैसा स्वरूप दे. So in order to understand Paul's letter to the church at Colossae, और इस खत को पढ़ने के लिए जो पौलुस प्रेरित ने कुलुसियों की कलीसिया को लिखा, we must see the context in which Paul was writing this letter to this church. तो हमें इसको इस संदर्भ में देखना है कि पौलुस प्रेरित कब इसको खत को लिख रहे हैं. This is the world of Apostle Paul. और ये जो चित्र है ये पौलुस प्रेरित का हिस्सा है. You know that सेवा का. he was from here in Jerusalem and Israel, and he traveled all these places throughout his journey and until he was in prison in Rome. और हम जानते हैं कि पौलुस प्रेरित यरूशलेम में थे और उन्होंने अपनी यात्राओं को ख़त्म करके फिर वो अब जाकर रोम की जेल में है. And the church to which he was writing was Colossae, which was here in Asia Minor. और जिस कलीसिया को वो ये खत लिख रहे हैं वो एशिया माइनर में है. He has traveled all these places, planted different churches. और उन्होंने यात्राएं कर करके कलीसियाओं की स्थापना की. But why did he choose to write to the church at Colossae? लेकिन पौलुस प्रेरित ने इस खत को कुलुसे के जो कलीसिया उसको लिखना क्यों उचित समझा? Apostle Paul and the church in Colossae have a very different understanding. और पौलुस प्रेरित की और जो कुलुसियों की जो कलीसिया थी उनके बीच में एक बड़ी फर्क सोच थी. The reason that Paul was writing this to Colossae, और जो कारण है जिसकी वजह से पौलुस इस खत को लिख रहे हैं कुलुसे की कलीसिया को, was to fight the false teaching that was going on in the church in Colossae. वो इसलिए लिख रहे थे ताकि जो गलत शिक्षाएं कुलुसे की कलीसिया में दी जा रही थी उसका विरोध करें. There were mainly two streams of false teaching. और केवल दो तरीके की गलत शिक्षाएं वहां पे थी. One was the Gnostic understanding of Jesus Christ. और एक नॉस्टिक सोच थी यीशु के बारे में. And the other one was the Jewish thought that was being imported from Jerusalem. और एक थी यहूदी विचारधारा जो यरूशलेम से उनके बीच में लाई गई थी. Now Paul had never visited the church at Colossae. It's interesting.
और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पौलुस प्रेरित कभी कोलोसे की इस कलीसिया में गए ही नहीं He did not plant this church. और उन्होंने इस कलीसिया की स्थापना भी नहीं करी। So why did he write this? तो इसलिए वो यहाँ क्यों लिखते हैं? Because as an apostle, क्योंकि एक प्रेरित होने के वजह से it was his responsibility ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी to bring about the correct understanding of Jesus Christ and to fight false teachings in the church. और वो ये थी कि वो सही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के विषय में दें और उस बात के लिए उनसे विरोध करें जो झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं। The Gnostic understanding of Jesus और जो नॉस्टिक सोच थी यीशु के बारे में believed in the supremacy of knowledge and wisdom. और जो नॉस्टिक विचारधारा थी वो बहुत ज्यादा ज्ञान के विषय में थी। It was about the Greek philosophy and their ideas. और वो ग्रीक फिलॉसफी और उनके सोच विचारधारा के विषय में थी। And they thought Jesus is okay, he's fine, but then you need everything else that is found also in Greek philosophy. और वो उनकी सोच थी, उनकी शिक्षा ये थी कि सब कुछ जो यीशु ने सिखाया वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये सिद्धांत फिलॉसफी भी जोड़ी जानी चाहिए। And Jewish thought, और जो यहूदी विचारधारा थी, which was mainly coming from the Jewish leaders and even Christians, Jewish Christians from Jerusalem, जो शिक्षा आ रही थी यहूदियों की यरूशलेम से या जो वहाँ के सिद्धांत को जानते थे, they were teaching वो ये शिक्षा दे रहे थे that Jesus Christ is fine. कि यीशु तो ठीक है, But then along with him, लेकिन उसके साथ साथ you need to have the Jewish tradition and the Jewish practices. लेकिन वो कहते थे यीशु तो ठीक है ना, उसके साथ यहूदी परंपराएं भी चाहिए। You must also follow circumcision for anybody from the Roman or Gentile people who are coming to believe in Jesus Christ. और वो ऐसा विचार रखते थे कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो भी वहां से आते हैं, उनको खतना करने की जरूरत है And they must follow the law. और उनको नियम कानून भी मानने चाहिए। Apostle Paul is fighting both of these. और पौलुस प्रेरित जो है वो ये दोनों विचारधाराओं के विरोध में बातचीत कर रहे हैं। And therefore his main theme इसलिए उनका जो मुख्य शीर्षक है in this letter इस खत में is that Christ is all sufficient. और वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो है पूर्ण तरह से पर्याप्त हैं, सब पर्याप्त हैं। And we all as believers और हम जो सब विश्वासी हैं must be rooted in him alone. हमको भी केवल यीशु में ही जड़ पकड़ना है। We do not need anything else to be added to the all sufficient Christ. और वो कहते हैं कि हमें कोई किसी और चीज की जरूरत नहीं है जब हमारे पास सब रीति से पूर्ण सक्षम प्रभु यीशु मसीह है। Okay, so let's enter into the first part of rooted in all sufficient Christ. इसलिए आज हम भाग 1 में आ जाएं जो है जड़ पकड़ना सब पर्याप्त प्रभु यीशु मसीह में, which is rooted and bearing fruit. और जिसमें हम देखेंगे जड़ पकड़ना और फल लाना। Let's read the first portion from the letter of Paul to the Colossians. आइए हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे पहले अध्याय की जो कुलुस्सियों की पत्री में पाई जाती है। Can two people help me read these two slides from chapter 1 verses 1 through 14? क्या कोई दो जन पढ़ने में मदद कर सकते हैं ये दो स्लाइड पढ़ने में? Thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। The first thing we should notice in this letter और पहली बात जो हमें इस पत्री में ध्यान देनी है that after introducing himself, कि जब अपने आप को वो परिचय देते हैं उसके बाद Paul is beginning with thanksgiving for a church that he had never seen before. और हम उसमें देखेंगे कि पौलुस प्रेरित जो हैं वो धन्यवाद देते हैं उस कलीसिया के लिए जिसको उन्होंने कभी देखा भी नहीं। In the first slide you saw, और पहले जो स्लाइड थी आपने उसमें देखा था, he mentions in verse 7 Epaphras.
और 7वें आयत में कुलुस्सियों पहले अध्याय की 7वें आयत And में he's- उसमें एक अपने सहकर्मी इपफ्रास के विषय में बोलते हैं. He says, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. और वो कहते हैं कि हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से हमने तुम्हारे विषय में सुना. Apostle Paul was in another city about 120 miles away from Colossae. और पौलुस प्रेरित जो है 120 मील की दूरी पर इस जगह से थे. In the city of Ephesus, और जो एपिफ्रस जो एक शहर था, he spent about 3.5 years, वहाँ कम से कम उन्होंने 3.5 वर्ष बिताए. planted a church, वहाँ पे एक कलीसिया की स्थापना की and then established leaders in that church और वहाँ पे कुछ अगुओं को उन्होंने खड़ा किया and made them missionaries to go out and preach the gospel. और उन्होंने उनको मिशनरी बनाकर और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बाहर भेजा. So one of the people from Ephesus और उसमें से एक जन जो एपिफ्रस वहाँ जगह से था, was Epaphras. उसका नाम था एपिफ्रास. He came to Colossae, वो कोलोसे में आए, preached the gospel, वहाँ पे संदेश सुनाया सुसमाचार का, planted a church there, वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना की and reported back to Apostle Paul. और उन्होंने उस कलीसिया के बारे में पौलुस प्रेरित को बताया. Now, it was not a huge church, it was not a mega church, और वो कोई बहुत बड़ा चर्च नहीं था, but it was a faithful church. It was meeting in homes. और ये एक बहुत विश्वास योग्य लोगों से भरा हुआ चर्च था जो घरों में मुलाकात करते थे. To that church that Paul had never seen in person, और जिनको व्यक्तिगत रूप से पौलुस प्रेरित ने कभी देखा भी नहीं था, based entirely from the reports that his people have brought to him. और पूर्ण तरह से उस रिपोर्ट के ऊपर आधारित जो उन्होंने सुनी लोगों से, He says, वो कहते हैं, we always thank God about you हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं. when we also pray for you, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए, because we have heard of your faith in Christ Jesus. क्योंकि हमने आपके विश्वास के बारे में सुना है जो आपने यीशु मसीह पर रखा है. And not only faith, न केवल विश्वास, but also of your love that you have for all God's people. परंतु उस प्यार के विषय में भी जो तुम परमेश्वर के उन पवित्र लोगों से करते हो. And that faith and love और यही विश्वास और प्रेम spring forth from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel. और उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस समाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो. Thanksgiving, really genuine thanksgiving for a church and for the work of God that was going on in Colossae. और ये एक बिल्कुल जेन्युइन और एक बिल्कुल सत्य रूप से बोली गई धन्यवादी है कुलुस्से के कलीसिया के लिए. He doesn't begin with concern. He has concerns, but he doesn't bring them up front. और किसी चिंता के विषय में वो पहले बात नहीं करते जो कि वहाँ पे थी. He doesn't bring any corrections that he should make. और वहाँ कोई सुधार के विषय में भी वो बात नहीं करते जो उनको वहाँ करना चाहिए. But just gratitude for what God was doing in Colossae. पर केवल धन्यवाद जो परमेश्वर उस बात के लिए जो परमेश्वर उस कलीसिया कुलुस्से के कलीसिया में कर रहा है. Think about it for a second. कुछ क्षण के लिए इसको सोचें. Because I think it tells us something how God tends to work. क्योंकि ये मुझे एक बहुत ही विशेष बात बताती है कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करते हैं. God knows all our weaknesses. परमेश्वर को तो हमारी सारी कमजोरियां मालूम है. God knows that we are not perfect. परमेश्वर को मालूम है कि हम सिद्ध नहीं हैं. He still loves us. तब भी वो हमसे प्यार करते हैं. He still loves this church right here. वो फिर भी इस कलीसिया से प्यार करते हैं यहाँ पर. Even though we may not be a mega church and we will never be a mega church. जबकि हम कोई बहुत बड़ी कलीसिया नहीं और हम कभी बहुत बड़ी कलीसिया भी नहीं होंगे. We have our own weaknesses as individuals. व्यक्तिगत रूप से हमारी अपनी एक कमजोरियां हैं. People in Colossae had issues. कुलुस्से के लोगों कलीसिया के लोगों में भी परेशानियां थी. And Paul doesn't begin. और पौलुस इससे शुरुआत नहीं करते. Okay, I have heard a few things about you and I think we need to talk. और वे नहीं कहते कि मैंने तुम्हारे विषय में कुछ बातें सुनी और हमें इसके लिए बातचीत करनी है. But he opens by celebrating what God is doing in their midst. लेकिन पौलुस जो है वो इस बात से की शुरुआत करते हैं
खुशी के साथ कि परमेश्वर क्या उनके मध्य में कर रहे हैं। And friends, if the great apostle could do that, और मेरे मित्रों, जब ये बड़ा प्रेरित ऐसी बात कर सकता है, writing to a church ऐसी कलीसिया को लिखने के द्वारा that was going through some major theological threats coming from outside, जो काफी थ्रेट्स के मध्य में से होकर गुजर रहे थे, but he delays that for a bit and praises God for them for what God is doing in their lives. उन बातों को उनको सुधारने की बातों को वो किनारे करते हैं और बाद में बोलने के लिए करते हैं, लेकिन वो पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वो उस कार्य के लिए जो परमेश्वर उनके बीच में कर रहे हैं। May we all take this from Apostle Paul. काश इस बात को हम पौलुस प्रेरित से सीख लें आज। In all things, हर बात में gratitude first. धन्यवादी पहले, In our own churches, हमारे अपनी कलीसियाओं in our में, own relationships, हमारी अपनी रिश्ते नातों में, in all that we do, that we may find something to give thank God for what He is doing in their lives. इससे पहले कि हम दूसरी बातें करें, हम धन्यवाद दें परमेश्वर को कि वो क्या हमारे जीवन में कर रहे हैं। Secondly, दूसरी बात, in this passage, इस अध्याय में especially in verse 6, खास तौर से 6 आयत में Paul reminds them पौल उन्हें याद दिलाते हैं that the gospel that they have heard, कि जो सुसमाचार उन्होंने सुना है, the good news that Epaphras has brought in to Colossae, और जो खुशखबरी कुलोसे में एपफ्रास लेकर आए हैं, is much, much, much bigger than their local church in that city. ये उस स्थानीय कलीसिया से बहुत बहुत बड़ी है। Paul says in verse 6, और 6 आयत में पौलुस कहते हैं, that has come to you. जो तुम्हारे पास पहुंचा है, That means the gospel, the message, the good news that has come to you. इसका मतलब जो खुशखबरी शुभ समाचार तुम्हारे मध्य में पहुंचा है, Just as it is bearing fruit and growing in the whole world. जैसे कि वो पूरे जगत में बढ़ता जा रहा है, So it has been bearing fruit among yourselves from the day you heard it and truly comprehended the grace of God. और वो कहते हैं कि जो समाचार तुमने पहले दिन से सुना वो बढ़ता जा रहा है और पूरी रीति से परमेश्वर का अनुग्रह उसमें दिखाई देता है। Paul says to a tiny house church in the city of Colossae, और पौलुस प्रेरित इस छोटी सी कलीसिया जो कि घर में स्थापित है कुलुस्से में उनसे कह रहे हैं, the whole world, in the whole world, what you have believed, what you are practicing is the same thing as happening in the whole world. और वो कह रहे हैं जो सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा है वही तो सारे जगत में भी बढ़ रहा है और फैला रहा है। What's happening in your small church, Paul says, पौलुस कहते हैं जो तुम्हारी छोटी सी कलीसिया में हो रहा है, what's happening in your small tiny congregation, और जो तुम्हारी छोटी सी कलीसिया में हो रहा है, in a city that probably the world doesn't know about, एक ऐसे शहर में, छोटे से शहर में जिसको पूरी दुनिया शायद जानती भी even नहीं, in your city nobody knows this church exists. और आपके शहर में भी इस कलीसिया को शायद कोई नहीं जानता कि ये है। It's not a local phenomenon. ये कोई एक स्थानीय फिनोमिना नहीं है। No, my dear friends, it is something that God is doing throughout in the whole world. हालेलुया। ये केवल एक स्थानीय कलीसिया के विषय में नहीं, लेकिन ये सब कुछ, ये सुसमाचार पूरी दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। So friends, whenever you hear about small churches being persecuted and living in danger, और इसलिए मेरे मित्रों, जब भी आप सुनते हैं कि छोटी कलीसियाएं खतरे में जी रही हैं और उनके बीच में सताव हो रहा है, all because they believe in the gospel, केवल इस वजह से कि वो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। whenever I hear of tiny churches in the Himalayan ranges, in hamlets that nobody has ever heard of, और जब भी मैं छोटी सी कलीसियाओं के विषय में जो हिमालयन रेंज में जिनको कोई जानता भी नहीं है, in rural India where you can't even find on a map those villages, और ऐसे गांव में जिनको आप मैप्स में ढूंढ भी नहीं सकते, or in China, या फिर चाइना में, or in Russia, or anywhere else in the Middle East, रशिया में या कहीं भी मिडिल ईस्ट में,
In Africa, in many other parts of the world today, friends, those tiny churches और अफ्रीका में चाहे दूसरे और देशों में जो ये छोटी कलीसियां हैं जहां आप ये पाते हैं, meeting quietly, जहां वो बड़े शांत तरीके से मुलाकात करते हैं, worshiping the Lord Jesus Christ, आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, singing softly. Sometimes they can't even make huge noises, और बहुत ही धीमी आवाज में वो गाना गाते हैं क्योंकि वो शोर नहीं कर सकते, but praying fervently for each other and for the gospel. लेकिन लगातार वो प्रार्थना करते हैं और सुसमाचार को प्रचार करते हैं। These places, these people ये जगह, ये लोग that will never make a headline, जिनको कभी आप हेडलाइंस में नहीं पाएंगे, and yet they believe in the same gospel that you and I believe today. आमेन। और यही सुसमाचार है जो जिसमें मैं और आज आप विश्वास करते हैं और ये उसको विश्वास करते हैं। And the same gospel that Apostle Paul preached, और यही जो सुसमाचार पौलुस प्रेरित ने प्रचार and किया, the same gospel that his disciple Epaphras brought to Colossae, और यही शुभ समाचार जो पौलुस प्रेरित के शिष्य एपफ्रास ने उनको पहुंचाया, and the same Spirit is working in us and throughout the world today. आमीन। और वही आत्मा हम में और पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। So this is how it matters and must matter for you this afternoon, friends. और मेरे मित्रों, इसीलिए ये हमारे जीवन में इसका बड़ा महत्व है। आज Maybe you think you are part of this tiny congregation here. आज आप सोचते होंगे शायद आप तो एक छोटी सी कलीसिया का एक हिस्सा हैं यहाँ। Maybe whatever you do here, nobody notices and you think it is all insignificant. और हो सकता है आप ये सोचते हो कि इसका कोई महत्व नहीं है, आप जो भी करते हैं छोटे तरीके से। Whatever you try to do, whatever you try to contribute through your finances or through your hard labor or your time, you think it may be insignificant for you. और आप किसी भी रीति से जो भी सेवा करते हैं अपने समय, अपने कार्य, अपने धन के द्वारा, हो सकता है आप सोचते होंगे कि इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। Apostle Paul's words पौलुस प्रेरित के शब्द to the church in Colossae जो वो कुलुस्से की इस कलीसिया को देते हैं, are the same words that he is saying to you and to me today. आमीन। यही शब्द है जो पौलुस प्रेरित के मेरे और आपके लिए भी आज है। You are not insignificant in God's eyes. परमेश्वर की आंखों में आप छोटे नहीं हैं। It is not peripheral. It doesn't go unnoticed before God. और परमेश्वर की निगाह में वो किनारे पर नहीं है और ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ परमेश्वर की निगाह नहीं पहुंच You सकती। may be tiny. आप छोटे हो सकते हैं Your contributions may be insignificant to you, और आपको लगता होगा जो भी आप करते हैं, देते हैं, वो शायद आपके लिए कम हो, but they are part of the kingdom that God is Hallelujah. establishing in the whole world. लेकिन ये सब उस परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है जो पूरे कार्य पूरी दुनिया भर में हो रहा है। Whether it shows up on anyone's radar or not, God knows it. चाहे Hallelujah. वो किसी के रडार पे दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, परमेश्वर उसे जानता है, उसका धन्यवाद हो। And thirdly, तीसरी बात, now Paul prays for the church in Colossae. और अब जो है हम देखेंगे तीसरी बात में कि पौलुस प्रेरित जो है वो कुलुस्से की इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते In हैं। verses 9 through 12, 9 आयत से 12 आयत तक Paul's prayer पौलुस की जो प्रार्थना है, is, notice here, not for growth. आप ध्यान देंगे कि ये बढ़ोतरी के लिए नहीं है, Numerically. गिनती के कारण। He didn't pray, okay, Lord, this is a tiny church. I want you to grow it so that it becomes the mega church in Colossae. और पौलुस प्रेरित ऐसी प्रार्थना नहीं करते कि ये तो छोटी सी कलीसिया है, इसको गिनती में बढ़ा दे और ये सबसे बड़ी कलीसिया हो जाए कुलुस्से No, में। his prayer is for depth, not just duration of the time they have believed in the gospel. और पौलुस प्रेरित की जो प्रार्थना है वो है उनकी गहराई के लिए, ना कि उस समय के लिए जो उन्होंने बिताया इस सुसमाचार को फैलाने के लिए। Paul tells them exactly what he has been praying for them. और पौलुस उनको बिल्कुल स्पष्ट रीति से बताते हैं कि वो किस विषय में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And verse 9 says, 9वीं आयत में लिखा है, and so from the day we heard, और जिस दिन से हमने ये सुना है, we have not ceased to pray for you. हम तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़े। And what he has been asking for them? और उनके लिए वो क्या मांगते रहे हैं? Asking that you may be filled और वो कहते हैं कि तुम भरपूर हो जाओ with the knowledge of his will.
कि तुम उसकी इच्छा के ज्ञान में बढ़ते जाओ, in all spiritual wisdom and understanding, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, so as to walk in a manner worthy of the Lord, ताकि और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, fully pleasing to Him, पूरी तरह से उसको आदर देने के लिए, and bearing fruit in every good work and increasing, again he brings that same word, increasing in the knowledge of God. और वो कहते हैं ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तो वो तुमसे प्रसन्न हो, तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। It's really surprised me the first time I read this prayer of Paul to the church in Colossae. और मेरे को काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ मैं इसको पढ़कर, ये प्रार्थना के लिए जो पौलुस ने अपने कुलुसे की कलीसिया के लिए की। Paul doesn't pray, Lord, grow them in numbers. पौलुस प्रार्थना ये नहीं करते कि इनको गिनती में बढ़ा दे। Paul doesn't say that God answer all their prayers and give them an easier life. और वो ये भी प्रार्थना करते कि इनकी सारी दुआओं का जवाब दे और इनको एक आसान जीवन दे। Lord, give them safety in the midst of persecution for Epaphras and for the whole church. और वो ये भी प्रार्थना नहीं करते कि इनको सेफ्टी दे और एपफ्रास को भी संभाले। He doesn't pray, God, solve all their problems and heal them and give all the miracles and signs and wonders in the church in Colossae. वो ये भी नहीं कहते कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दे, इनको चंगाइयाँ दे दे। Listen to what he prays. ध्यान दें कि वो प्रार्थना क्या He's करते हैं। praying for depth. वो प्रार्थना कर रहे हैं उनकी गहराई के लिए, He's praying for knowledge. वो उनके ज्ञान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, He is praying that they will know the will of God. और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में That they परिपूर्ण हो will जाएं, have strength to endure whatever they may be going through. और उन्हें ताकत मिले उन सब सताव के बीच में जिसमें से होकर वो गुजर रहे हों, And that they may be molded into the image of His Son Jesus Christ. और फिर वो परमेश्वर की पहचान में उनके स्वरूप में बढ़ते जाएं। So the prayer that he is praying for the Colossians, और जो प्रार्थना वो कुलुसियों के लिए कर रहे हैं, it matters to us today immensely. ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात है। We are living in a culture today और जिस संस्कृति में हम आज रह रहे हैं, that is absolutely saturated with all sorts of informations. जिसमें हम पूरी तरह के अलग अलग तरीके के ज्ञान की बातों को देखते हैं, वो भरपूर हैं। We have access to more Bible, और हमारे पास ज्यादा बाइबल्स का एक्सेस है, more preachings, ज्यादा प्रचार का, more sermons, ज्यादा संदेशों का, more podcasts, और पॉडकास्ट भी बहुत है, more YouTube channels, और यूट्यूब चैनल भी बहुत है, more email devotions, और बहुत से डिवोशंस हैं, more Facebook and Insta reels, और बहुत से सोशल मीडिया की बातें हैं। than any generation in the history of the church. We have all of these on our fingertips. और किसी भी पीढ़ी में हमने इतनी ज्यादा भरपूरी को नहीं देखा जो आज हम देख सकते हैं आज की पीढ़ी में। And yet, तब भी I say this with a heavy heart. और मैं बड़े भारी हृदय से इस बात को बोलता हूँ, This information, और जितने ये इंफॉर्मेशन है, rather the deluge of information that we are living in, जबकि एक बड़ा प्रलय की तरह है जिसमें हम आज जी रहे हैं, it is not producing maturity among believers. और इन सब बातों के होते हुए भी और होने के बाद किसी प्रकार से हम परिपक्वता नहीं देखते हैं विश्वासियों में। Rather we are falling for any kind of new teachings that comes by. बल्कि हम बार बार गलत शिक्षाओं में जो नई नई शिक्षाएं आती जा रहे हैं उनमें हम गिरते जा रहे हैं। Paul is praying that the Colossians will be so rooted that they will stand strong in any storm. और पौलुस प्रेरित जो है वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कुलुसी की कलीसिया को कि ये जो विश्वासी लोग हैं ये इतनी गहराई पकड़ लें कि किसी प्रकार के आंधी तूफान में भी ये खड़े रहें। He uses the word knowledge and the will of God twice. और इसमें वो ज्ञान और समझ को और Knowledge and the will of God. परमेश्वर की इच्छा को और ज्ञान को और समझ को कम से कम 2 बार दोहराते हैं। He's not praying for emotional meetings only.
वो केवल भावनात्मक मिलने जुलने के लिए ही बात नहीं कर रहे हैं। We have today everything available at our fingerprints, और हम- fingertips. और आज हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, ढूंढते ही हमको मिल जाता है। But what is lacking is the depth, which is lacking. What is lacking is the knowledge and the will of God in all of these. लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी किस चीज की कमी हम देखते हैं? परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण होते हुए। Therefore, we must be more discerning today than the church in Colossae, because they didn't have access to all of this. इसलिए हमको और ज्यादा परखने की आत्मा की आवश्यकता है, कुलुसियों की कलीसिया से भी ज्यादा, क्योंकि उनके समय में इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी जो हमारे पास आज की पीढ़ी में है। We are running after people and prophets and miracle workers and healing workers and this conference or that conference and this person and that person and this meeting and that meeting. और हम इन दिनों में हम लोगों के पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे, चंगाई करने वालों के पीछे, इस मीटिंग में, उस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में लोगों के पीछे भागते चले जा रहे हैं। We should not be praying, हमको ये प्रार्थना नहीं करनी है, God teach me one more thing. हमको ये प्रार्थना ही नहीं करनी कि परमेश्वर हमें एक और बात सिखा दे। We shouldn't be praying, हमें ये भी नहीं प्रार्थना करनी God give me one more insight. कि हमें एक और इंसाइट दे दे, Rather, we should be praying, बल्कि हमें ये प्रार्थना करनी है, God, please help me. परमेश्वर कृपया मेरी मदद करें। Let what I already know, what I have already learned past week, कि जो भी मैंने पिछले हफ्ते में पढ़ा है तेरे वचन से, that it may go down deeper and I may Amen. go deeper in it and deeper and deeper and take root in the all-sufficient Christ. आमीन। कि जो कुछ भी मैंने पिछले हफ्ते में या पिछले समय में पढ़ा है, जो मेरे हृदय में पढ़ा है, उसको जड़ पकड़ने दे ताकि मैं और गहरा प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता And जाऊं। that I may be shaped in the image of your Son Jesus Christ. हे परमेश्वर, मैं तेरी उस स्वरूप में जो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है उसमें बढ़ता जाऊं। Lastly, Paul says in this chapter 1 verses 12 to 14, और चौथी बात जो इस हिस्से में हम देखते हैं, पौलुस हमें सिखाते हैं कुलुसियों 1:12-14 में, and it's a great news और एक बहुत ही अच्छा सुसमाचार that है you are already qualified for Jesus Christ Hallelujah. and for God. कि आप तो पहले से ही आप क्वालिफाइड है प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए। He says, giving thanks to the Father, वो कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते He has हुए, already qualified you or enabled you वो कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें पहले से इस योग्य बना दिया to है share in the inheritance of the saints in the knowledge of light. कि तुम प्रिय पुत्र के राज्य में परमेश्वर के अनुसार उसके राज्य में बढ़ते जाओ। This you don't have to earn, this you don't have to do anything. तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, But it is the grace of God that has qualified you already. You have been enabled to receive the inheritance of the saints. और वही कहते हैं कि ये तो परमेश्वर है जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। He says, we must know that Paul was about to correct them. और हमको इस बात को जानने की जरूरत है कि पौलुस जो है अब उनको सुधारने की कोशिश In करना later चाहते हैं chapters, आने वाले अध्यायों में, but he begins by assuring them, पर उनको वो अपनी बात को शुरू करते हैं उनको याद दिला के, अश्योर करने के by द्वारा, encouraging them. उनको encourage करने के They are द्वारा, already qualified, they are already equipped, they are already enabled. और वो कहते हैं तुम तो इस योग्य पहले से ही हो By the grace of our Lord Jesus Christ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, and by everything that He has done for us. और हर एक उस बात के लिए जो उसने तुम्हारे लिए कर दी है। You don't need to add yoga, you don't need to add philosophy, you don't need to add this thing or that thing for you to be qualified to be part of the Amen. kingdom of God. और तुमको उसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं कि तुम परमेश्वर के राज्य के हिस्सा हो जाओ। But God has already accomplished that in and through Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ने इसको तो पूर्ण कर दिया यीशु मसीह में और उसके द्वारा। So now you must
enjoy the inheritance that God has already provided for you. और वो कहते हैं इसलिए तुम इस बात को पहले से ही एंजॉय करो कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ तुमको मिरास में सहभागी कर लिया है। You must rejoice in your inheritance that God has already qualified you for. और तुम इस बात में आनंदित हो जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें सहभागी बना दिया इस मिरास के This लिए। is the first portion of chapter 1 today. और मेरे मित्रों ये पहला हिस्सा है पहले अध्याय का कुलुस्सियों के पत्री में से। So Paul thanks God for a small faithful church in Colossae. इसलिए पौलुस हम देखेंगे कि पौलुस धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को एक छोटे विश्वास योग्य चर्च के लिए, कलीसिया के लिए जो कुलुस्से में He है। reminds them they are part of a global gospel. और वो उन्हें याद दिलाते हैं कि वो भौगोलिक जो सुसमाचार है उसके एक हिस्सा है। And he prays for them that they will have depth in their faith. और वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके विश्वास में वो गहराई पाएं। And then he reminds them that God has already finished the work of their salvation in Jesus Christ. और वो उन्हें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह में और उसके द्वारा अपने कार्य को उनके जीवन में पूर्ण कर दिया So है। this is the message of Colossians in a nutshell, which Apostle Paul will be expanding in the coming weeks. तो ये जो अभी हमने सीखा ये एक छोटे रूप में पौलुस ने जो पूरे कुलुस्से की कलीसिया के खत में रखा है उसका छोटा सा एक सारांश है। Christ is supreme and above all. यीशु सर्वोपरि है और सबसे ऊपर है। He is all sufficient for you and for my salvation.